السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ محمد علی شبیر مشیر ریاستی حکومت برائے درج فہرست و اقلیتی طبقات کے ساتھ ضلع نظام آباد کے اردو ٹیچرز یونین قائدین کے ساتھ مختلف دیرینہ حل طلب مسائل کی یکسوئی کے لیے نمائندگی کی گئی تھی، جس پر انہوں نے فوری طور پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن ڈاکٹر لنگیا سے فون پر رابطہ پیدا کرتے ہوئے ان کی یکسوئی عمل میں لانے کی ہدایت دی اور نظام آباد کے سینئر اقلیتی قائدین کو ڈی ای او نظام آباد سے ملاقات کرتے ہوئے ان مسائل کے بارے میں تفصیلات سے واقف کرانے اور نمائندگی کرنے کی خواہش کی تھی، جس پر کانگریس کے اقلیتی قائدین کے ایک وفد نے جو سید نجیب علی ایڈوکیٹ، اشفاق احمد خان پاپا، محمد ہارون خان رکن ریاستی پولیوشن بورڈ و کارپوریٹر، محمد مجاہد خان سابق کارپوریٹر، سمیر احمد، نذیر الدین اور کونسلر بودھن عمران احمد، محمد عارف الدین اور دوسروں پر مشتمل تھا۔ ڈی ای او نظام آباد سے ٹیچرز یونین قائدین کے ہمراہ ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ 2 دن پہلے نظام آباد کے اردو میڈیم ٹیچرز حیدرآباد پہنچ کر ریاستی مشیر اقلیتی بہبود محمد علی شبیر صاحب سے اردو ٹیچرز کی پروموشن سے متعلق اردو اساتذہ کے مسائل، اردو مدارس کو بند کر دیے جانے اور وہاں پر ٹیچرز کی کمی اور مختلف امور پر انہوں نے نمائندگی کی تھی۔ شبیر صاحب نے آج یہاں پر ڈی او سے ملاقات کر کے تفصیلات حاصل کرتے ہوئے ان سے نمائندگی کرنے کے لیے کہا تھا۔ آج اردو ٹیچرز یونین کے ہمراہ کانگریس پارٹی کا ایک وفد جو مجاہد خان صاحب، اشفاق احمد خان صاحب، ہارون خان صاحب، نذیر احمد ڈبو صاحب، سمیر احمد صاحب اور ہمارے دوسرے ساتھی یہاں پر شامل تھے۔ ڈی او صاحب سے ہم نے تفصیلی ان مسائل پہ بات چیت کی اور جن امور کو فوری طور پر حل کرنا ہے اس کے سلسلے میں ہم نے لیٹر کمشنر اور ڈائریکٹر ایجوکیشن کے نام پہ حاصل کیا ہے اور بہت سے مسائل کو انہوں نے تیقن دیا کہ وہ فوری طور پر ان مسائل کی یکسوئی عمل میں لائیں گے۔ جہاں تک ٹیکنیکل امور کا تعلق ہے جس کی نمائندگی حکومت سے کی جانی چاہیے، وہ محمد علی شبیر صاحب کے علم میں ان تمام امور کو لایا جائے گا اور تمام مسائل کی یکسوئی کے لیے انشاءاللہ اقدامات کیے جائیں گے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ وہ وائی سی پی کے انتشاری دور کے 5 سال کے دوران کپم حلقے کے کارکنوں اور قائدین کو درپیش تمام مشکلات کو یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلگو دیشم پارٹی کو کمزور کرنے کی حکومت کی سازشیں قائدین اور کارکنوں کے خود اعتمادی کے سامنے کام نہیں آئیں۔ چندرا بابو نائیڈو نے کپم پارٹی دفتر میں حلقے کے لیڈروں اور کارکنوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ ریاستی تعلیم، آئی ٹی اور الیکٹرانکس کے وزیر نارا لوکیش نے افسران کو امراوتی میں اساتذہ کے تبادلوں کو شفاف بنانے کی ہدایت دی ہے اور وزیر لوکیش نے اسکولی تعلیم میں کی جانے والی تبدیلیوں اور اسکولی تعلیم کے اعلیٰ حکام کے ساتھ معیار کو بہتر بنانے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر تقریباً 3 گھنٹے تک ایک طویل جائزہ اجلاس منعقد کیا اور اساتذہ کے تبادلوں کے معاملے میں کمشنر کو ہدایت کی گئی کہ وہ ماضی کی طرح سیاسی دباؤ کا شکار ہوئے بغیر طریقہ کار واضح کریں۔ ایم ایل اے گنڈو شنکر نے طلباء سے خواہش کی ہے کہ وہ اچھی طرح سے تعلیم حاصل کریں اور بہترین نتائج حاصل کریں۔ انہوں نے گرامین منڈل کے کشتا پیٹ منڈل پریشد پرائمری اسکول میں پرنسپل بالی وڑا سوریہ نارائن کی صدارت میں منعقدہ کٹ تقسیم پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کا مقصد سرکاری اسکولوں میں بہترین تعلیم فراہم کرنا ہے۔ گنڈو شنکر کی طرف سے گزشتہ 434 دنوں سے چلائی جانے والی کینٹین شہر کے ایڈور چوراہے اور پرانے بس اسٹینڈ علاقوں میں سینکڑوں بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا کر ان کی بھوک مٹا رہی ہے۔ اپنے قیام کے بعد سے ہی کینٹین 435 دنوں سے مسلسل چل رہی۔ ایک عام آدمی اور ٹی ڈی پی لیڈر کے طور پر چندر بابو نے ایم ایل اے کے طور پر حلف لینے کے بعد پہلی بار کینٹین کا دورہ کیا۔ کئی لیڈر آئے اور بہت سے وعدے کی، اقتدار میں آنے کے بعد یہ بھول گئے کہ انہوں نے عوام کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا اور کیا بدلاؤ لایا، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ شہر کی یہ حالت جو تھوڑی سی بارش سے بھی سیلاب آ جاتا ہے، کئی دہائیوں سے شہر کے باسیوں کی فکر نہیں رہی۔ ان کے برعکس پہلی بار مقامی ایم ایل اے کے طور پر بھاری اکثریت سے جیتنے والے گنڈو شنکر اپنا الگ انداز دکھا رہے اور شدید بارش کے باوجود انہوں نے شہر کے باسیوں کے مشکلات کا بذات خود مشاہدہ کیا۔
जब बचाने वाली पुलिस ही दहशत बन जाए तो फिर किससे पनाह ली जाए। लड़की की मां ने राजेंद्र नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि प्रदीप जो कि शमशाबाद RGA पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल की हैसियत से ड्यूटी अंजाम देता है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के तहत बुधवेल में रहने वाले एक नाबालिग लड़की को ये बावर करके धोखा दिया गया कि वो उसके साथ शादी करेगा। जब शादी का मामला उठाया गया तो लड़की के वालिदैन को एहसास हुआ कि उन्हें धोखा दिया गया है। लड़की के वालिदैन को बताया कि उसकी शादी 1 साल कबल ही हो गई है और पुलिस से उन्होंने रुजू किया है। राजेंद्र नगर ACP श्रीनिवास ने बताया कि राजेंद्र नगर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कल शाम 26/6/2024 के शाम के दिन विक्टिम राजनगर PS को आके एक 1 कांस्टेबल गाजुला प्रदीप बोल के RGA PS में काम करता, उन्होंने चीट करा बोल के वो विक्टिम लेडी 17 ईयर्स का एज है और चीट करता बोल के पिटीशन दिया। उसके ऊपर से आज ये प्रदीप कांस्टेबल को हम लोग अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। सुल्तान बाजार पुलिस ने तरंगी नागराज उर्फ नागा नामी डाकू को सुल्तान बाजार PS के जुर्म में गिरफ्तार किया है। बदनाम जमाना मुलजिम तरंगी नागराजू उर्फ नागा को PC संदीप साइलू रविंद्र चैतन्य की मदद से आंध्रा बैंक कोटी हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से लूटा हुआ सेलफोन और 2500 रुपए की नकद रकम बरामद कर ली। मुलजिम को मजीद अदालत में पेश किया गया। इस केस की तफ्तीश श्रीनिवास आचार्य इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सुल्तान बाजार PS शंकर ACP सुल्तान बाजार डिवीजन हैदराबाद की निगरानी में की जा रही है। भैंसा शहर के मार्केट इलाके में वाक़ गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल में तकरीबन 400 से ज्यादा तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं, जहां तालिबात को ताम खाने में बरक़ी पंखे नहीं थे, जिस पर स्कूल के असातिज़ा और इंतजामी कमेटी के जिम्मेदारों ने नायब सदर नशीन बल्दिया वज़ीर सदर मजलिस मोहम्मद जाबिर अहमद को मुतवज्जो करवाया, जिस पर फौरन मोहम्मद जाबिर अहमद की क़ियादत व हिदायत पर मोहम्मद अब्दुल माजिद टाउन जनरल सेक्रेटरी मजलिस व नुमाइंदा काउंसलर ने ज़ाती सरफे से 6 बरक़ी पंखों को नस्ब करवाया। अलावा अज़े 2 कमरे जमातों में बरक़ी पंखों की दुरुस्तगी के इंतजाम को यकीनी बनाते हुए तालिबात को गर्मी से राहत के सहूलियात फराहम की, जिस पर तालिबात असातिज़ा और स्कूल इंतजामी कमेटी ने मोहम्मद जाबिर अहमद और मोहम्मद अब्दुल माजिद के अलावा मजलिस पार्टी का शुक्रिया अदा किया। जगतियाल जिले हेडक्वार्टर में दिन दहाड़े एक शख्स पर चाकू से हमला किया गया। शराब पीने आए और शिमला शेखर नामी शख्स ने सामान मुफ्त देने का हुक्म जारी किया, लेकिन जब परमिट रूम के मैनेजर ने वहां पर स्नैक्स देने से उन्हें इनकार कर दिया और रकम का मुतालबा किया तो शराबियों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा है कि क्या तुम मुकामी से पैसे मांग रहे हो, इसके लिए बनता और दीगर चाकुओं से उन्होंने हमला कर दिया। तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर और BRS लीडर KCR के साथ कारकुनों और मदाहों का दौरा गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जारी है। कारकुन और लोग बड़ी तादाद में अपने पसंदीदा रहनुमा को देखने के लिए इरावली की रिहाइशगाह पहुंच रहे। KCR हर कारकुन को खुसूसी वक्त दे रहे जो आते हैं और मदाहों का गर्मजोशी से इस्तकबाल कर रहे। इरावली के आसपास के इलाके भीड़ के साथ हंगामे में बदल गए हैं। जय तेलंगाना जय KCR के नारे गूंज उठे हैं। KCR की रिहाइशगाह शायकीन से खचाखच भरी हुई है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक तालिबे इल्म मोतीलाल नायक जो बेरोजगारी के मसाइल की वजह से पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, गांधी अस्पताल गए, उनकी सेहत का हाल मालूम किया और उनकी जद्दोजहद से यकजहती का इजहार किया। उन्हें यकीन दिलाया गया कि BRS उनकी हर मुमकिन मदद करेगी। अवामी हुक्मरानी के नाम पर 3/4 तबाह करके हुक्मरानी मुसल्लत की गई है। BRS पार्लिमानी पार्टी के डिप्टी लीडर और वावेरा राजू रविचंद्रन ने पार्लिमानी पार्टी के लीडर के R सुरेश रेड्डी और साथ ही MP डॉक्टर बंडी पार्थसारथी रेड्डी के साथ दिल्ली में नामाधिकारों से बात की। राज्यसभा के रुकन वावेरा राजू रविचंद्रन ने मुतालबा किया है कि कांग्रेस पार्टी अपने BRS से जीतने वाले MLAs को फौरी तौर पर रोके और ये कहकर कांग्रेस पार्टी अपने मंशूर में इसके खिलाफ है। ముఖ్యంగా కేంద్ర మంత్రిగా వచ్చినటువంటి కిషన్ రెడ్డి గారికి, బండి సంజయ్ గారికి, తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కేంద్ర మంత్రులందరికీ కూడా, సహాయ మంత్రులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఇప్పటికైనా తెలంగాణ సింగరేణిని కాపాడే విధంగా బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి గారు కిషన్ రెడ్డి గారు పూనుకోవాలని చెప్పేసి మీ BRS పార్టీ డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మేము
గత 10 సంవత్సరాలు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి సింగరేణిని ఖచ్చితంగా 100% కాపాడారు. ఒక్క వేలంలో కూడా ఒక్క మైన్ కూడా పోకుండా కాపాడడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ఖచ్చితంగా వేరే ఒక వేలంలో వచ్చిన మైన్ కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లోకల్ వాళ్ళే చేయాలనే ఉద్దేశంగా, ఇది లోకల్కే తెలంగాణకే దక్కాలనే ఉద్దేశంగా పోరాటం చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా తెలంగాణ నుంచి ఉన్నటువంటి బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి గారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఉన్నదే తెలంగాణలో బొగ్గు గనులు, వితౌట్ సింగరేణి తెలంగాణలో ఏమీ లేదు. తెలంగాణ సాధన పోరాటమే బొగ్గు కోసమే పోరాటం, బొగ్గు నుంచే సింగరేణి నుంచే తెలంగాణ సాధన పోరాటం ఉద్భవించింది. ఆ పోరాటానికే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాందిగా ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్గా ఉంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా దాన్ని పోకుండా కాపాడాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర మంత్రుల మీద ఉంది. అట్లాగే రైల్వే కోచ్ श्रीकाकुलम जिले के मरकज में आरटीसी कॉम्प्लेक्स के जखायर को भरने के लिए थोड़ी सी बारिश काफी है। बारिश के पानी के साथ साथ पानी हर जगह नहरों में दाखिल हो जाता है और पूरे कॉम्प्लेक्स के इहाते को तालाब में तब्दील कर देता है, जिससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये सूरत हाल कई दहाइयों से चली आ रही, लेकिन आरटीसी हुकाम और हुक्मरान मुसाफिरों के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। मरकजी काबीना सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव गोबा ने चीफ सेक्रेटरी और रियासतों, मरकज के ज़िला इंतजाम इलाकों के मुंतज़मीन और मरकजी वजारतों के सेक्रेटरियों के साथ जल शक्ति अभियान पर वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तमाम रियासतों को तमाम आबी ज़खायर बशमूल जियो टैगिंग और साइंसी मंसूबे की तैयारी को मुकम्मल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि मनरेगा, कैंपा, फाइनेंस कमीशन वगैरह के तहत दस्तियाब फंड्स को पानी के तहफ़्फ़ुज़ की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कोदंडापुर पंप हाउस में ज़ेरे मरम्मत दूसरे पंप का एनआरवी वाल्व का काम सुबह मुकम्मल हो गया। जिन एहलकारों ने जंगी बुनियादों पर मरम्मत का काम शुरू किया, उन्होंने उन्हें तेजी से मुकम्मल कर लिया है, जिसके बाद पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई और कृष्णा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम फेज 2 के तहत तमाम इलाकों को पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। देवादया चैरिटीज डिपार्टमेंट की वज़ीर कोंडा सुरेखा ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तमाम महकमों को बाहम मरबूत करें और मुसल्लह इक़दाम करें, ताकि बुनाल त्यौहार के दौरान यहाँ पर अक़ीदतमंदों को कोई किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। तमाम महकमों के ओहदेदारों ने मशवरा दिया है कि वो हुकूमत की हिदायत पर अमल करें और यहाँ पर कामयाबी से अपनी खिदमत को अंजाम दें। टीजीएस के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि नर्सिंग अफसरान लोगों के सेहतमंद तर्ज जिंदगी और सेहत की देखभाल के निज़ाम को फरोग देने में अहम रोल अदा करते हैं और वो नर्सिंग अफसरान के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालेंगे, जिन्हें बहुत से मसाइल का सामना है। तेलंगाना नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन की रियासती कॉन्फ्रेंस तेलंगाना नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन के रियासती सदर रवि किरण पावाती की सदारत में तेलुगु यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम नामपली हैदराबाद में मुनक्किद हुई। किले गोलकुंडा में आइंदा बोनाल त्यौहार के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की गई है। मजलिस के कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर, जीएचएमसी जोनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपीज और दीगर ओहदेदारों के साथ प्रोग्राम में शिरकत की और टीजीएसपी, डीसीएल, एचएमडब्ल्यू, एसएनएसबी, टीजीआरटीसी, फायर डिपार्टमेंट के साथ इंतजामात का जायजा लिया और अफसरान को हिदायत दी कि वो इसके लिए वसी इंतजाम करें। गोलकुंडा बोनाल त्यौहार अपने उरूज पर पहुंच रहा। महकमे पुलिस इस तकरीब के लिए मुनासिब इंतजाम करेगा और त्यौहार को बरादराने जज्बे के साथ मनाया जाना चाहिए। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।